अस्सलाम स्टूडेंट्स, दिस इज़ हुमैरा बशीर एंड यू आर वाचिंग एपिक वर्ड्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कन्फर्मेशन ऑन रिएक्टिविटी और इफ़ेक्ट्स ऑफ कन्फर्मेशन ऑन रिएक्टिविटी। सो लेट्स मूव टू द टॉपिक confirmation on reactivity on acyclic compound from acyclic compound. Conformation and reactivity in acyclic compound, it's basically based on E1 reaction. E1 is elimination unimolecular reaction and it is a two-step mechanism commonly seen in alkyl halide or alcohol under acidic condition. Understanding how conformation 3D step of a cyclic compound affects reactivity is a crucial to predicting product formation of rate. E1 basically have some steps. First step is formation of carbonation, and we can say that formation of carbonation is also known as rate determining step. In this step, leaving group like bromide Br negative and H2O departs, and this form a carbonation intermediate. Step 2, elimination reaction. A base remove beta hydrogen from a carbon adjacent to carbocation. And second point of elimination, step 2, a pi bond, which is also double bond, known as double bond, formed between alpha and beta carbon. Carbonation or carbocation stability, if we can see that first one is tertiary, then secondary, then primary. Alicyclic and benzylic carbocation are also stabilized due to resonance. More stable carbocation faster E1 reaction. While conformation is a critical in E2 reaction, conformation of matter in E1 reaction, carbocation can rotate freely in a cyclic system, allow access to multiple conforms. And secondly, conformation, if we discuss stereochemistry or this ratio increase the chance. Why conformation matter in E1 was first point here. Carbocation can rotate freely in a cyclic system, allow access to multiple conforms. The rotation increase the chance of elimination, and at different beta position lead to the formation more than one alkene product. In acyclic compound, E1 reactivity is influenced by the carbocation stability BH, beta or hydrogen availability, and product stability. Conformational flexibility in acyclic system generally aids the reaction by allowing rotation to favorable conformation, though not as critical as in E2. Conformation still impact regio and stereochemistry of E1 product. If you had like or seen as a diagram, so let's move to the diagram. And diagram, so ये है जी हमारे पास डायग्राम को मैं थोड़ा सा उर्दू में आपको एक्सप्लेन करूँगी तो आपको थोड़ा वाइडली समझ आएगा। फर्स्ट है जी हमारे पास 2 ब्यूटानोल, 2 ब्रोमो ब्यूटेन या 2 ब्रोमो ब्यूटानोल, सॉरी दिस इज़ 2 ब्रोमो ब्यूटेन है और 2 ब्रोमो ब्यूटानोल की एग्जांपल मैं आपको आगे देती हूँ। ये है जी हमारे पास 2 ब्रोमो ब्यूटेन। 2 ब्रोमो ब्यूटेन में होता क्या है, ये कार्बन, यहाँ पे ये हमारे पास क्या है ब्रोमीन, दिस इज़ मिथाइल CH3H। अब होता क्या है, ये है हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड 2 ब्रोमो ब्यूटेन और ये है जी फेवर्ड कन्फर्मेशन जिसमें SH वही मॉलिक्यूल है। ये है जी हमारे पास 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब 2 ब्रोमो ब्यूटेन में के साथ एक फेवर्ड कॉम्बिनेशन हमने बनाना है तो ये क्या बनता है, ट्रांस 2 ब्यूटेन की फॉर्म में बनता है। ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड जहाँ से टूटता है ट्रिपल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और डबल बॉन्ड की फॉर्म में आ जाएगा। कैसे, ये हमारे पास कार्बन, ये है CH3 और ये H,
अब ये जो ब्रोमीन का मॉलिक्यूल है, यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से मिलेगा और ये HBr यहाँ से रिमूव हो जाएगा। दिस HBr रिमूव कैसे, यहाँ से देखें जी, प्रोडक्ट में कार्बन एंड कार्बन डबल बॉन्ड CH3 और CH3, ये H और ये H। अब ये क्या बन गया, ट्रांस टू ब्यूटेन। और दूसरी अगर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, ये जनरल रिएक्शन है, मैकेनिज़्म हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये हमारे पास जी कार्बन और ये भी वही 2-ब्रोमोब्यूटेन है, लेकिन यहाँ पे हमने बनाना क्या है, सिस बनाना है। वहाँ पे हमने ट्रांस बनाया था, यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, सिस 2-ब्यूटेन। सिस आपने पहले पढ़ रखा है, सिस सेम एंगल पे होता है जो, और ट्रांस इस तरह में होता है। CH3, ये जो ट्रिपल बॉन्ड था, ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से टूटा, डबल बॉन्ड के फॉर्म में आ गया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मिथाइल ग्रुप आ गया। ये क्या बन गया, सिस 2-ब्यूटेन। और एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं साइक्लिक कंपाउंड की, साइक्लिक कंपाउंड में क्या होता है, साइक्लिक कंपाउंड में, बल्कि साइक्लिक कंपाउंड से पहले एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ, 2-ब्यूटानोल की। अब 2-ब्यूटानोल में क्या होता है, पहले मैं डायग्राम हम बनाते हैं, सॉरी, 2-ब्यूटानोल की, C कार्बन, यहाँ पे क्या आएगा, HOH, दिस वन इज OH, यहाँ पे क्या आएगा, मिथाइल, और यहाँ पे क्या आएगा, मिथाइल। अब क्या होगा, ये मैकेनिज़्म थोड़ा सा समझने वाला है। होता क्या है, होता ये है, यहाँ से प्रोटॉन क्या होता है, लॉस करता है, लिविंग ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाता है। कैसे, यहाँ से ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन यहाँ से ब्रेकअप होता है और ये बॉन्ड यहाँ से टूटता है, तो बनेगा क्या हमारे पास, CH3 और ये क्या आ गया, कार्बन। कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये जो था वाटर की फॉर्म में रिमूव हो गया। अब हुआ क्या, यहाँ पे एलिमिनेशन हुई, किसकी, एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन, एलिमिनेट हो गया। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में यही जो एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन है, ये हमने दोबारा ऐड करना है, कब, 2-ब्यूटीन में। अब यहाँ पे 2-ब्यूटीन का मैं स्ट्रक्चर लिखने लगी हूँ, कार्बन, CH3 एंड दिस वन इज CH3 एंड H। अब ये जो यहाँ से हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन हम कहाँ करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे ये हाइड्रोजन हम ऐड करेंगे यहाँ पे, ठीक हो गया जी। ये जब यहाँ पे ऐड करते हैं तो होता क्या है, ये जो सिंगल बॉन्ड है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, डबल बॉन्ड में, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। ये क्या बन गया, ये क्या था बेसिकली, ब्यूट 2-इन, और ये क्या बन गया, ब्यूट 1-इन। एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं 2-ब्यूटानोल की, तो वो सेम इसी तरह से ही बनेगा। हुआ क्या, यहाँ पे ये कार्बन ये कार्बन है, यहाँ से ये कार्बन से ये ऑक्सीजन ने अटैक किया और यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो गया। यही जो हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ था, इस एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन को फिर हमने ऐड किया नेक्स्ट स्टेप में, तो ये क्या बन गया, 2-ब्यूटीन की फॉर्म में। और ये 2-ब्यूटीन में जब ये हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो ये क्या बन जाता है, ब्यूटीन 1-इन। दिस इज
स्टेप ऑफ मैकेनिज्म ऑफ कंफर्मेशन ऑफ रिएक्टिविटी। और ये साइक्लिक कंपाउंड में अगर देखें तो साइक्लिक कंपाउंड में क्या होता है, ये सब बेसिकली साइक्लिक कंपाउंड में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। जैसे ए साइक्लिक कंपाउंड में एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं और साइक्लिक कंपाउंड में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। ये हमारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में NSN2 रिएक्शन होता है। SN2 रिएक्शन में होगा क्या, ये हमारे पास है एक मॉलिक्यूल, यहाँ पे ये साइक्लिक कंपाउंड है। ये साइक्लिक कंपाउंड यहाँ से SPH ने जब अटैक किया है ब्रोमीन पे, तो ब्रोमीन यहाँ से रिमूव होके नीचे शिफ्ट हो गया है और HPH कहाँ पे शिफ्ट हुआ, ऊपर। और ये SN2 रिएक्शन है। उसके बाद एक और अगर देखें मॉलिक्यूल, ये फास्टर SN2 मैकेनिज़्म होगा, और एक और मैं दिखाऊंगी तो वो स्लोअर मैकेनिज़्म होगा SN1 का। सॉरी, ये भी SN1 ही है। ये एक और साइक्लिक मॉलिक्यूल है, मिथाइल ग्रुप, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन है। यहाँ पे जो ओथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है, यहाँ से ये रिमूव होता है, ये टूटता है, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव चार्ज ये शो करता है कि ये जो रिएक्शन है ये क्या है, फास्टर है। और नीचे अगर दूसरा आप साइक्लिक मॉलिक्यूल देखें तो उसमें ये जो मिथाइल है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन, ये जो OTS है, ये जब रिमूव होता है यहाँ से, बाकी SH हाइड्रोजन भी वहीं रहेगा, ये हाइड्रोजन भी वहीं रहेगा, और ये CH3 भी SH इधर ही रुकेगा। और ये जो यहाँ से रिमूव होगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और ये SN1 रिएक्शन है, और ये स्लो स्टेप में मैकेनिज़्म होता है। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे एस्टरिफिकेशन और एलिमिनेशन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। इट्स ऑल अबाउट कंफर्मेशन ऑन रिएक्टिविटी।